Good morning, my students. How are you today? Hope you are safe and fine. Let's continue our chapter number 6, Weather and Climate. And today topic is the climatic or heat zone. We have already learned about the factors that influence the climate, what is weather and difference between them. And today we are starting climatic or heat zones. These climatic or heat zones present on the Earth's surface on the globe in three parts. They are divided into three parts. Why they are divided? Their division based on the rainfall and the sunlight received by the particular place. Here you can see this climate zone divided into three climatic zones, that is the torrid zone, temperate zone and freeze zone, and these division based on sunlight and rainfall, right? The shapes of the earth is also important, right? ये shapes जो है, because the shape this area this area receives the slanting sun rays from the sun and कर्व होने की वजह से क्या होता है, स्लैंटिंग सन रेज आती हैं, जिससे जो यहाँ टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली टॉरिड जोन के जो होगा वो कम होगा, राइट? सन रेज स्लैंटिंग होगी तो मीन्स सन रेज से जो हीट है वो अर्थ पर कम आएगी. It is curved and the rays of the sun have to travel greater distance. We have already learned about these factors that affect the climate and in slanting manners to reach the higher altitudes. और स्लैंटिंग मैनर से यहाँ पर जो है सनरेज आती हैं और हायर अल्टीट्यूड्स पर भी जो है, जैसे हाइट पर जाने पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. एंड द थ्री क्लाइमेटिक जोन्स are there. First is torrid zone, second is temperate zone, the both side in the on the globe, north temperate zone in the northern hemisphere and south temperate zone in the southern hemisphere, and freeze zone also two. First is north freeze zone in the northern hemisphere and south freeze zone in the southern hemisphere. Now we are explain these three torrid three zones, heat zones. First is torrid zones. Where it is located, you can also imagine or can I explain with this diagram कि torrid zone जो है वो कहाँ से कहाँ तक extend है. It is extend both side of the equator. Center is equator. Both sides means equator के northern hemisphere में tropic of cancer तक and equator के south में tropic of capricorn तक torrid zone जो है वो located है. It lies on the both sides of the equator between tropic of cancer in the north and the tropic of capricorn in the south. Climate in areas में torrid zone में कैसा मिलेगा? टॉरिड जोन पर क्लाइमेट अगर ये इक्वेटोरियल एरियाज में है, दैट मीन्स वहां पर जो क्लाइमेट होगा वो हॉट एंड ह्यूमिड होगा. मीन्स सनरेज जो हैं अगर डायरेक्ट फॉल होती हैं तो टेम्परेचर जो होगा वो हॉट होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा. It is because the sun rays fall direct on this area. The sun shines brightly. सन यहाँ डायरेक्ट सन रेज फॉल करता है ब्राइटली. शोर इक्वेटोरियल एरियाज में जो है सन रेज फॉल होती हैं, टेम्परेचर जिससे क्या होगा, वेरी हाई होगा थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. एंड इट रेन्स, जिससे क्या होगा, रेन्स भी जो है वो ज़्यादा होगी, हैवीली होगी. आफ्टरनून हर शाम को जो है कहते हैं कि रेन हो जाती है इन एरियाज में, बिकॉज दिन का टेम्परेचर जो इतना ज़्यादा होता है जिससे क्या होता है, हवा ऊपर उठने लग जाती है और ऊपर जाकर ठंडी होके क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती है. द एरिया इज कवर्ड विथ थिक. ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पर एरियाज में क्या हो गए,
फॉरेस्ट और वेजिटेशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, थिक फॉरेस्ट वहाँ मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट आल्सो नॉन एज द रेन फॉरेस्ट, मीन्स रेन से ये फॉरेस्ट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रेन होने से, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट। द सेकेंड इज टेम्परेट जोन। इन द diagram you can see the temperate zone. It is located between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere, and located in the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. Here you can see the location. This area lies between the torrid and freeze zone in both hemisphere, between the Tropic of Cancer, Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere. और क्लाइमेट यहाँ का कैसा होगा, मॉडरेट टाइप का होगा, मीन्स यहाँ जो है वो स्लैंटिंग सनरेज होती है ना, तो दिस एरिया इज नाइदर वेरी हॉट और नॉर वेरी कोल्ड, ना तो ज़्यादा यहाँ सर्दी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। दिस इज बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, क्योंकि ये एरिया जो है इक्वेटर से दूर है, एंड सन जो है बिल्कुल हेड पर शाइन नहीं करता है, बिल्कुल डायरेक्ट सन रेज जो है यहाँ रिसीव नहीं होती हैं। एंड समर्स आर नॉट वेरी हॉट एंड नॉर आर द विंटर्स वेरी कोल्ड, ना तो गर्मियाँ में ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर्स भी ज़्यादा ठंडी नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रास लैंड, यहाँ क्या मिलते हैं हमें, यहाँ फॉरेस्ट मिलते हैं, थिक फॉरेस्ट मिलते हैं, यहाँ हमें ग्रास लैंड मिलते हैं मोस्टली इन द वर्ल्ड। लास्ट वन इज फ्रीज जोन, वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड यहाँ, ये जो जहाँ खत्म होता है मीन्स आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल एंड तक 90 डिग्री नॉर्थ तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल की ओर सदर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेट करता है। एंड द क्लाइमेट इस एरिया में एज यू कैन इमेजिन विद द वर्ड फ्रीज जोन, फ्रीज मीन्स जमा हुआ, राइट। क्लाइमेट क्या होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, दिस इज बिकॉज ऑफ द सन रेज आर स्लेंटिंग, क्योंकि जो है इन एरियाज में सन की रेज जो है वो स्लेंट होती है, तिरछी पड़ती हैं, और वेरी लिटल हीट जो है वो रिसीव होती है। ड्यूरिंग द होल ईयर अगर हम देखें तो समर्स आर वेरी शॉर्ट, समर्स बहुत शॉर्ट होती हैं और कूल्स बहुत कूल होती हैं। यहाँ का जो मेनली लैंड का पार्ट है, चाहे वाटर का पार्ट है, ओशनिक एरियाज जो आते हैं वो मोस्टली फ्रीज्ड होते हैं, जमे हुए होते हैं, राइट। द सीज एंड लैंड्स इन द आर्टिक एंड द अंटार्कटिक सर्कल आर फ्रोजन, जमे होते हैं थ्रू आउट द ईयर, चाहे फिर वो लैंड्स हो या सी हो, दोनों जमे हुए होंगे, फ्रीज्ड होंगे। दिस लैंड इज फेमस फॉर इट्स मिडनाइट सन। द सन, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, मिडनाइट सन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है वो सन जो है वो आप कहोगे 6 मंथ के ड्यूरिंग चलता है। 6 मंथ कई बार जो है वो सन बहुत लाइटनिंग सी, जैसे कैंडल लाइट सी होती है ना, ऐसी नाइट जो है वहाँ दिखाई देती है, बहुत कम रोशनी जो होती है यहाँ होती है, बिकॉज स्लैंटिंग रेज आती हैं। और पूरे साल में अगर हम देखें, पूरे ईयर में हम देखें तो यहाँ 6 मंथ जो है कई बार सन जो है वो दिखाई भी नहीं देता, राइट। द सन डज नॉट सेट फॉर डे एट अ स्ट्रेच फॉर 6 months, राइट। हियर यू कैन सी द डायग्राम, अर्थ इज स्लैंटिंग, राइट, अर्थ इज टिल्टेड, टिल्ट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम देखते हैं तो सन रेज अगर जाती हैं, तो अगर सिचुएशन अर्थ की यहाँ पर है तो दैट मीन्स यहाँ नॉर्थ पोल को जो है, नॉर्थ पोल मीन्स यहाँ आर्टिक सर्कल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इस आर्टिक सर्कल के बहुत साइड जो है यहाँ तक रेज जा रही हैं। बट इन द अंटार्कटिक सर्कल जो यहाँ से हमारा 66.5 आता है, इन एरियाज में जो है वो 6 मंथ तक सन जो है वो रेज नहीं आती हैं, मीन्स सन दिखाई नहीं देता है। अगर हम इसके अपोजिट साइड देखें तो यहाँ जो नॉर्थ साइड में जो है अंटार्कटिक सर्कल है, वहाँ पर सन रेज नहीं आती है, मतलब यहाँ के लिए 6 मंथ के लिए नाइट मानी जाती है, और इस सिचुएशंस में यहाँ तक अगर फॉलो करती है तो ये 6 मंथ ये यहाँ तक जो है साउथ पोल के लिए, साउथ एरिया के लिए, फ्रीज जोन के लिए जो यहाँ पर सन रेज नहीं आती हैं, मीन्स यहाँ बहुत कम सन रेज आती हैं।
तो क्या कहते हैं कि 6 मंथ के लिए यहाँ क्या होता है, रात होती है. द सन डज नॉट राइज फॉर डेज एट अ स्ट्रेच. वेरी लिटल वेजिटेशन जो होती है वो यहाँ फॉर्म होती है. राइट. So we have complete our chapters. So try to complete your exercise, try to fill your exercise, and try to do your short answers in your PNB, and we will complete the further questions in the next class. Till then, thank you students. Have a nice day.